playing. So especially runners and those who are into sports where there is a lot of running required. Then coming to team analytics. So same way, the technology is there where we analyze the team data using the software. And once we have analyzed all the team data using software, we can come to know where we stand in the world ranking. So if particular team who is doing very well in the industry, and the same way in India that we have also created a particular team in the same field, and when we analyze both teams, we see the data where we are lacking and the other team is doing well. Then analysis is done, and according to the analysis, we interpret the rehabilitation and training protocol for them. Then comes sleep monitoring. So you can monitor the sleep of an athlete, which can give us some data whether the person is sleeping well or not, and time of sleep and duration of sleep. They all matter because it helps in our recovery phase. If the person is not going, if the athlete is not going for a recovery phase properly, he'll land up with injuries for sure. That's why this is very important to use sleep monitoring for an athlete. फिर हम आते हैं वर्चुअल रियलिटी पे. So this is also a new field. अगर कोई आप लोगों में से वर्चुअल रियलिटी वाले गेम्स प्ले करता है, you must be knowing कि how it feels when you are into a virtual reality dome. Then you feel like there is as if you are actually in the game. सेम वे वर्चुअल रियलिटी में गेम्स खिलाई जाती हैं जो पर्सन जिस स्पोर्ट्स में है, और उसमें एनालिसिस सॉफ्टवेयर के द्वारा की जाती है, एंड वी कम टू नो वेरियस फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट एन एथलीट. देन कम्स 3D scans. So 3D scans में nowadays earlier MRIs were only used for diagnosing orthopedic conditions. Now the things have changed. MRIs are also being used for an athlete monitoring, to see whether how much ranges are there in their joints, and how they are doing the swing in hockey, and how they are playing and taking their stance in the game. So that way we can come to know various problems which can hamper their game afterwards. Then coming to swing analysis is the same as ऑप्शन एक अनम्यूट का वहां पर लगता है तुम क्लिक कर दी होगी, इसीलिए ऐसा बोल रहा है. देखो we can mute all of them right now, and we can unmute them later. So coming to swing analysis is the same field that we have already discussed. We can analyze in golf whether the person is playing right swing or not, and whether the acceleration and deceleration phase is coming into right phase or not. Then coming to smart clothing. Nowadays people wear smart clothing, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि आपकी जो मसल्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं गेम के ऊपर. उस टाइम पे आपका हार्ट रेट कैसे चल रहा है, वाइटल्स कैसे चल रहे हैं, एंड हाउ मेनी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एट व्हाट टाइम. इट्स इंकॉर्पोरेटेड विद EMG टेक्नोलॉजी, जिसमें मसल्स का रिस्पॉन्स भी पता चलता है, एंड यू कैन ऑल्सो ट्रेन देम यूजिंग द स्मार्ट क्लोथिंग बाय गिविंग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू द मसल्स, ताकि वो बेटर रिस्पॉन्ड करें उस गेम के अंदर. Then coming to the mental stimulation, there are many studies which are condition कर रहे हैं ability. Gonna apply to the game, and then they are asked to go for the game, which gives better performance according to the researchers. So I'll briefly discuss about what we are doing at Manav Rachna University. So we have a sports science center over here, and which is our vision is to actually create and give scientific support for every athlete's performance enhancement, and that is our main motto. As a center in Western countries, they are like in every nook and corner, whereas
in India, now they are booming up. These centers which works on this approach, which is a holistic approach, which works on everything. Like if an athlete comes to us, we assess an individual on all these factors: strength and conditioning aspect, their strength, their power, their nutrition level, their psychology at present, their mental status, their biomechanical status. All these things need to be assessed first to work on all these areas. To become an Olympian, if you see those rings in between, we need to follow an holistic approach. एक पर्सन या एक फिजियोथेरेपिस्ट या सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट या सिर्फ साइकोलॉजिस्ट कैनॉट मेक अ एथलीट go into Olympics. We need a combined effort of all these areas. So these are few photographs which shows we are working on an Indian team athlete. We are assessing them biomechanically. So this is a clinical and biomechanical assessment जो आपको सबको पढ़ाई गई होगी अपने bachelor's level पे, starting from range of motions and their muscle strength, their mobility, everything needs to be assessed first. That is the first step for a physiotherapist to work on. So this is the second phase that we work on. After we have assessed all athletes, then time comes for their re-injury. जिनको problems चल रही हैं अभी, जिसकी वजह से उनकी गेम हैम्पर हो रही है, उसको हमें सॉर्ट करना है, उनको रिटर्न टू प्ले करवाना है जल्द से जल्द, एंड उनकी गेम जो है वो इम्प्रूव करवानी है. So this is the phase where we work on rehabilitation. Then we help them with exercise assistance. Once we have sorted their biomechanical issues by various techniques, जो आप बाद में पढ़ेंगे अपने मास्टर्स लेवल पे, एडवांस टेक्निक्स, myofascial release, and kneading, cupping, T-react, Maitland, all these techniques जब यूज कर लेते हैं और उनकी इश्यूज सॉल्व कर लेते हैं, then we do assist them in exercises. So this is one of the strength and conditioning experts that we have with us, Grant Waters from South Africa. He trains the person in exercises and conditioning. Then the advanced assessment is done in Manu Rachna Sports Science Center on the machines. These are Technobody machines from Italy, and it's one of the expensive equipments that we have. It's for advanced assessments and treatment. Even we can train on these machines, all that. So, आप इन photos में अगर देखोगे, you will see shooters are using the machines more from various countries as well, from Italy and all. And we can even intercept their stance and position while we are assessing on the machine. We'll give you the live demo also on all these machines. Brief introduction. This is the server that we have. सबसे पहले जब भी एथलीट आता है उनका असेसमेंट होता है एडवांस लेवल पे, उनका सारा डेमोग्राफिक डाटा फिल किया जाता है सर्वर में, जो कि इटली में उनकी लैब से कनेक्टेड है, टेक्नोबॉडी की लैब से, एंड इट्स वेरीफाइड थ्रू आउट द वर्ल्ड. आफ्टर taking demographic data, we check their vitals. उनके वाइटल्स मेजर किए जाते हैं, जैसे रेस्टिंग मेजर्स में बीपी, then their respiratory rate, their heart rate, and their height, their weight. ये सब चीजें मेजर करने के बाद we take them on this machine. This is InBody 230. इसकी हेल्प से हमें एथलीट का BMI मिलता है, उसका फैट परसेंटेज मिलता है, उसका स्केलेटल मसल मास कितना है ये पता चलता है, बॉडी में फैट परसेंटेज कितनी है ये पता चलता है, और बॉडी के किस सेगमेंट में फैट ज्यादा है या मसल ज्यादा है, या फैट कम है या मसल ज्यादा है, ये चीजें पता चलती हैं. तो उनका एक बेसिक चार्ट हमें पता चल जाता है कहाँ पे एक एथलीट वीक है, किस किस एरिया में अपर बॉडी में एथलीट स्ट्रांग है, उसके बेसिस पे स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग करते हैं. ये मशीन आपको अगर मैं नाम बताऊंगा तो आपको सबको आइडिया होगा इसके बारे में. दिस इज कॉल्ड एज आइसोकाइनेटिक मशीन. इसमें असेसमेंट भी की जाती है जॉइंट की, स्पेशली द लोअर बॉडी, द नी जॉइंट इज असेस्ड ऑन दिस. थाई मसल्स, क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ मेजर करी जाती है, और उसका टॉप जनरेशन मेजर किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली रिहैब प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है.
especially in ACL rehab and ACL reconstruction post-surgery, we take an athlete on this machine. And we can even train the person like आप अपनी लैब में CPM यूज करते होंगे सारे बच्चे. So that is continuous passive motion. इस मशीन में there is a facility जिसमें हम नी जॉइंट पे सिर्फ रेंज स्पेसिफिक सेट करके रख देते हैं जैसे CPM में रखते हैं, और ये खुद मशीन उसके लेग को ट्रेन कराती है उस रेंज में. रेजिस्टेंस कितना रखना है, कितना ऊपर तक जाना है रेंज, वो सब ये डिसाइड करती है और उसको रिया फेज में डाल दिया जाता है आफ्टर असेसमेंट. Then this is our second machine that we work on. This is for proprioception assessment. Anybody has an idea what is proprioception? कोई भी बता सकते हो. प्रोप्रियोसेप्शन, हाँ बताओ. Good afternoon, sir. Good Sir, afternoon. proprioception means sensory stimulus जो अगर पोजीशन सेंस जैसे जॉइंट पोजीशन सेंस हो गया वो पेशेंट को फील होता है, मतलब सेंसरी सेंसेशन प्रोप्रियोसेप्शन. बेटा आपका नाम क्या है? सेंचुरी सिंह. ओके सेंचुरी, बेटा ये बताओ कि अगर एथलीट को हम एक अनस्टेबल प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दें तो उससे हमें प्रोप्रियोसेप्शन में हेल्प मिलेगी कि नहीं? हाँ सर मिलेगी. उसको जो जिसका जो जॉइंट का पोजीशन होगा वो सेंस करेगा कि आप अनस्टेबल पोजीशन पे हो, तो वो ठीक है, चीज वेरी गुड. अब ये बताओ कि आपके जॉइंट पोजीशन जो सेंस आती है वो किसके थ्रू आती है, किस चीज के थ्रू आती है? ऐसा क्या Sir, है once आपके again. जॉइंट में? ऐसा क्या होता है सर जॉइंट्स में? सर जॉइंट रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं जॉइंट्स के पोजीशन को, फिर वो स्टिमुलस भेजते हैं सेंसरी सिस्टम को कि आपका जॉइंट क्या सेंस कर पा रहा है, किस पोजीशन में है, तो वो जॉइंट रिसेप्टर्स होते हैं. वेरी गुड सेंचुरी. आपके रिसेप्टर्स होते हैं जॉइंट रिसेप्टर विच आर कॉल्ड एज प्रोप्रियोसेप्टर्स. प्रोप्रियोसेप्टर्स आप Yes, जब भी sir. अनस्टेबल प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तब आपके जो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं वो फायर करते हैं. उनको लगता है कि जो हमारा एथलीट है वो अनस्टेबल हो गया है, अब हमें कुछ करना चाहिए. अब वो प्रोप्रियोसेप्टर सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को कि भैया ये तो मेरे को गिरा देगा आपकी बॉडी को, आप कुछ करो इसके लिए. तब ब्रेन बोलता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ. ब्रेन अपनी तरफ से सिग्नल भेजता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए. ब्रेन को ये पता होता है कि अगर मैं ये वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो ये साइड की मसल से ये स्टेबल हो जाएगा और गिरेगा नहीं. सो दिस इज द वे दैट इज रिक्वायर्ड इन ट्रेनिंग फॉर द प्रोप्रियोसेप्शन इन एन एथलीट. हर एथलीट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जितने भी सिग्नल्स आते हैं दो चीजों से आते हैं. एक होता है विजुअल सिग्नल्स, जो आप देख रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि मेरे को इधर से नहीं जाना है, मैं गिर जाऊंगी. और दूसरी सिग्नल्स आते हैं आपके रिसेप्टर से. अगर आपको दिख नहीं रहा है वो क्या कुछ आपके आगे पत्थर है, अगर अब आप उसके ऊपर चढ़ भी जाओ तभी भी आप नहीं गिरोगे क्योंकि प्रोप्रियोसेप्टर्स आपको बचा लेंगे. वो ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे कि इनको इस तरह से बचाओ. सो एक एथलीट में क्योंकि उसका सारा फोकस, उसका विजुअल फीडबैक उसकी गेम पे लगा हुआ है, वो हमेशा फोकस कर रहा है कि उसकी गेम कैसे इंप्रूव करनी है. अगर बॉल आ रही है तो बॉल को कैसे मारना है, अगर बैडमिंटन में शटल कॉक आ रही है तो रैकेट से उसे कैसे हिट करना है. तो उसका विजुअल फीडबैक जो है वो क्लोज है, इसलिए उसको ज्यादा रिलाई करना पड़ता है अपने रिसेप्टर्स पे फीडबैक के लिए और बेटर गेम के लिए. That's why we train proprioception in athlete and it's very important thing. इस मशीन में proprioception पहले मेजर की जाती है, फिर उस पे वर्क किया जाता है, ट्रेन भी किया जाता है. अभी हम लाइव डेमो देंगे. These are few reports that are generated. अगर आप पहली रिपोर्ट देखोगे उसमें दो वो दिखाए हैं पैरामीटर्स, ओपन आइज के और क्लोज आइज के. ये बैलेंस ये बता रहा है कि आपका बैलेंस ओपन आइज में कैसा था और क्लोज आइज में कैसा था. ये रिपोर्ट देखने से पहले आप सब ये जान लीजिए कि येलो मतलब होता है कि नॉर्मल रेंज में, ग्रीन मतलब कि एथलीट रेंज यानी कि वेरी गुड रेंज, और ऑरेंज मतलब होता है पुअर रेंज.
अगर लेमन टर्म में हम बोलें, अगर आप वैल्यूज ना जाने तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कलर क्या मीन कर रहा है। पहली रिपोर्ट अगर आप देखेंगे ओपन एंड क्लोज में, ये बता रहा है कि उसका ओपन आइज में बैलेंस जो था नॉर्मल था, बट क्लोज आइज में ज्यादा था। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो प्रोप्रियोसेप्टर्स आर वर्किंग बेटर, दे वर्किंग वेरी वेल, क्योंकि आपने क्लोज आइज कर दी, आंखें बंद कर दी, विजुअल फीडबैक कट ऑफ हो गया, तो उसके रिसेप्टर्स ने ज्यादा वर्क किया और उसका क्लोज आइज में अच्छा बैलेंस आया है ग्रीन जोन में। और अभी मैं आपको उस पर भी एक्सप्लेन करूंगा मशीन पे। आप सेकंड रिपोर्ट अगर देखोगे, इसमें बताता है कि आप कितने स्टेबल थे उस टाइम ये टेस्ट परफॉर्म करते वक्त, ये ग्रीन जोन में है। सो दिस एथलीट वाज वेरी स्टेबल while even when the platform was moving. Then third phase if you see, it's almost into the orange zone. अगर आप लेफ्ट में एक बार देखेंगे, उसमें ऑलमोस्ट एरो दिखा रहा है ऑरेंज जोन में, तो there is lot of scope of improvement in this athlete. He was almost coming to a poor zone in balance. This is called as balance of both feet. Then third report is again the STAR test that gives an indication whether the person has good mobility in the ankle. Then coming to trunk control. तो ये मशीन बताती है कि आपके कोर मसल्स कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आपका ट्रंक में कितना कंट्रोल है। एनीबडी कैन टेल व्हाट इज ट्रंक कंट्रोल? कोर मसल्स कौन कौन सी हैं, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कोर मसल्स कौन कौन सी होती हैं? कोई भी बताओ। नो आइडिया? Sir, extensors of spine, quadratus Hello. lumborum, abdominalis. Hello. Hello. हाँ जी अंशु। Good afternoon, sir. हाँ जी गुड आफ्टरनून। सेंचुरी बता चुकी है, अब आप बताओ। Sir, pelvic floor muscles, transversus abdominis, multifidus, rectus Okay. abdominis. Yes, sir. ओके, एनी अदर? और कोई मतलब Internal and external muscles. Obliques. इंटरनल एंड Internal. एक्सटर्नल, वेरी गुड वेरी गुड। और Erector spinae and diaphragm. नहीं, डायफ्राम बेटा कोर मसल Sorry. नहीं है। Erector erector, spine. yes, and even And your latissimus glute muscles, dorsi. Yes, sir. not Gluteus maximus and latissimus dorsi and not latissimus dorsi बेटा, quadratus lumborum। ठीक है ठीक है, these all muscles are core muscles। ये हमारी ट्रंक स्टेबिलिटी में हेल्प करती हैं मसल्स। हम इस मशीन से ये सारी मसल्स को चेक करते हैं बाय चेकिंग हाउ मच मूवमेंट दे हैव, मोबिलिटी कितनी है ट्रंक में और कितना कंट्रोल है, वो अभी हम लाइव डेमो में देखेंगे अभी। देन कमिंग टू द रिपोर्ट्स, इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जिसके अंदर ये ग्राफ दिखता है। ग्राफ में ये पता चलता है कि उसकी मूवमेंट भी, आप सांप जैसे स्ट्रक्चर्स को देख रहे हो, उसके अंदर ये बता रहा है कि वो बंदे ने, एथलीट ने कैसी मूवमेंट करी अपनी ट्रंक से। तो देयर इज ऑफ कोर्स एक ऑल्टर्ड पैटर्न आएगा, क्योंकि प्योर सर्कल तो आ नहीं सकता अगर ट्रंक मूव करेंगे। तो दिस इज व्हाट वाज अचीव्ड। हम हर किसी को इसमें शकीरा बनाने की कोशिश करते हैं कि उसकी पेल्विक मोबिलिटी अच्छी हो जाए, हर एथलीट की जैसे शकीरा कर पाती है। सो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन इन रिपोर्ट। एंड जो आप सेकंड टेस्ट देख रहे हो, स्टार टेस्ट, ये बताता है कि एथलीट की मोबिलिटी कितनी है हर एरियाज में। फ्रंट में कितनी मोबिलिटी है, बैक में कितनी मोबिलिटी है, साइड में कितनी मोबिलिटी है। इस एथलीट का अगर आप देखोगे, फ्रंट, राइट साइड और डाउन, द मोबिलिटी इज लेस, वेयरएज लेफ्ट साइड में ज्यादा है। तो यानी कि स्ट्रक्चर्स ऑन द लेफ्ट साइड आर टाइटर देन द राइट साइड, जो अलाउ नहीं कर रहे इन मूवमेंट को होने से। तो हम उन स्ट्रक्चर्स को रिलीज करते हैं, उनको स्ट्रेच करते हैं और ये मोबिलिटी बेटर हो जाती है। तो इट वर्क्स इन फीडबैक एज वेल। Then this is the machine which is widely used by us. This is for gait assessment. आपका एक टॉपिक भी होगा आपकी बैचलर्स में गेट असेसमेंट का। ये मशीन वो हमको सिंप्लीफाई करके पूरा चार्ट बता देती है कि कहाँ पे क्या रेंज चल रही है और कितने डिग्री
किया जो कि एक एथलीट में बहुत कुछ रिपोर्ट डिग्री के बाद Dr. Rahul, I am audible? Yes, sir. Hello. Yeah, am I audible over there to everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. All right. तो ये रिपोर्ट जो है ये हमारी तीसरी मशीन से निकली है जिसमें हम गेट एसेस करते हैं। ये वेरियस लेवल पे आप ऊपर देखोगे तो अपर बैक में ट्रंक का बता रहा है कि साइड बेंडिंग कितनी हुई है, आगे कितना बेंड हुआ है, पीछे कितना बेंड हुआ है चलते वक्त, लेटरल सेक्शन कितनी हुई है, हिप पे क्या रेंज ऑफ मोशन रही है चलते वक्त, नी पे क्या रेंज ऑफ मोशन रही है, देन लोड लेफ्ट साइड पे ज्यादा था कि राइट साइड पे ज्यादा था, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सीओजी की कितनी हुई है ऊपर नीचे, और कांटेक्ट टाइम कितना था उसके पैर रखने का, केडेंस साइकिल कितनी थी, उसका स्टेप लेंथ कितनी थी, ये सारे पैरामीटर्स हमें इससे मिल जाते हैं मशीन। Now this is the next machine. This is for posture assessment. इसमें हम एथलीट का पोस्चर असेस करते हैं कि उसके स्पाइन में कितना वेरिड डिग्री है, किस साइड ज्यादा लोड हो रहा है, लेफ्ट में कि राइट में। उसके बेसिस पे हम कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशंस करते हैं टू सेटल डाउन द वेरिएशन इन द स्पाइनल लेवल एट वेरियस वर्टिब्रा। कितने वर्टिब्रा होते हैं बॉडी में, कौन बता सकता है? 26. 26। 23 prayers. 23 पेयर वर्टिब्रा के। 33 sir, 33 You 33 sure? You sure? अच्छा Sir, 33. yes, sir. नंबर्स में कितने हैं? Sir, 5 vertebrae. Yes, so we are not getting the PPT. Hello. PPT project नहीं हुआ है, I guess. Yeah, I think there's some Yes, sir. issue with the internet. Okay. Really no sorry problem. for the interruption because of internet. No I'll problem. We share are my waiting. screen once. Yeah. Are you able to see the screen? Yeah, we are getting PPT and audio both. All right. So this is the report. मैंने पूछा था कि इसमें आपको क्या लगता है किस जगह पे प्रॉब्लम है? Who can tell? सर Sir, lumbar हाइपोलोडोसिस region. है, लंबर लोडोसिस कम है, हाइपोलोडोसिस है तो मेनली कंप्रेशन एंटीरियरली ज्यादा होगा मेबी। नहीं बेटा, मैंने लोडिंग के बारे में पूछ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि लेफ्ट साइड में ज्यादा लोडिंग है कि राइट साइड में ज्यादा लोडिंग है? अगर आप ये वैल्यूज देखो
कहाँ पर लोडिंग ज्यादा होगी? सर सर लेफ्ट साइड में सर लेफ्ट साइड Left ज्यादा side लोडिंग लग रही वेरी गुड वेरी गुड। सो लेफ्ट साइड में अगर आप Left वैल्यूज lumbar देखो region. 56%, वेरी गुड, Yes, sir. 56% है, 54% है, 49। Yes, तो sir. अगर आप पेल्विक एरिया में देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है 50 और 49, उसमें ज्यादा वैल्यू डिफरेंस नहीं है। मगर आप अगर ऊपर देखो कैपुलर एरिया में और लंबर एरिया में, तो लेफ्ट साइड में ज्यादा लोडिंग हो रही है, which sometimes indicates spasm on the left side, and second thing it can indicate कि vertebrae जो हैं वो rotated हैं राइट की तरफ। अगर वो राइट में रोटेटेड होंगे तो लेफ्ट साइड का जो एरिया होगा वो की तरफ प्रोमिनेंट हो जाएगा, एंड दैट गिव्स मोर रीडिंग ऑन द फोर्स प्लेटफॉर्म। अगर ये कंडीशन हमारे पास आती है तो हम क्या करेंगे? विल ट्राई टू एडजस्ट द स्पाइन बाय डूइंग ग्रेड 5 मैनिपुलेशन। तो ग्रेड 5 मैनिपुलेशन से हम जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं the rotation at the spinal level in the upper back as well as in the lower back, and उसी टाइम इंस्टेंटली हमें रिजल्ट मिल जाते हैं और हम दिखा सकते हैं कि these sides were bad for you पहले, अब हमने वो चीजें ठीक कर दी हैं। now your game will improve क्योंकि आपकी रेंज ऑफ मोशन पूरी हो गई है, and equal on both the sides। और हर एथलीट में देयर इज वेरिएशन इन देयर फाइनल लेवल। क्यों? क्योंकि उनका जो स्पोर्ट होता है इट्स वेरी मेनी टाइम्स इट्स डोमिनेंट ऑन वन साइड ओनली, इसलिए वो इतने सालों से खेलते खेलते उनका जो स्ट्रक्चर है इट चेंजेस, एंड फिर हमारा रोल ये होता है कि उसको मेंटेन करके रखें लेवल को, वेरिएशन को, ताकि उनका गेम ठीक चलता रहे और इंजरीज ना हो। देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, these three machines जो आपको दिख रही हैं ये फंक्शनल लाइन एवेल्युएशन मशीन्स हैं। इसमें फंक्शनल मूवमेंट चेक की जाती हैं एक एथलीट की। अगर वो बैडमिंटन प्लेयर है तो उसमें इस तरह से वेट्स एडजस्ट किए जाएंगे और मूवमेंट्स एडजस्ट की जाएंगी कि कैमरा जो ऊपर लगा है वो पिक करे कि उसका स्टैम्प कैसा है, उसके फोरहेड मूवमेंट कैसी हैं, उसकी बैकहैंड मूवमेंट कैसी है वाइल प्लेइंग द गेम। अगर वो एक शूटर है तो उसके गन के साथ उसको ड्राई ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें ये दिखाया जाता है कि आपका गन लेवल स्टेबल रह रहा है कि नहीं रह रहा है, आर यू एबल टू मेंटेन स्टेबिलिटी फ्रॉम द फीट और नॉट। दिस इज वेरी यूजफुल। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, समवन हैज क्वेश्चन? I guess वो गलती से अनम्यूट हुआ। ओके, तो ये जो रिपोर्ट है हमारी फंक्शनल लाइन में आई है आफ्टर इवैल्यूएटिंग देम, इसमें हमने इस मशीन पे ये चेक किया था कि राइट और लेफ्ट शोल्डर में कितनी रेंज है। अगर आप देखें राइट में एलिवेशन कितनी है विच इज फ्लेक्शन, एंड एबडक्शन कितनी है सेकंड रो। उसमें आप सीओजी का अगर पोस्चर देखेंगे तो ही वाज एबल टू मेंटेन फ्लेक्शन में, सेंट्रलाइज है, मगर जैसे ही उसको बोला कि एबडक्शन करो शोल्डर की तो हे वाइड हो गया, लेफ्ट साइड भी जा रहा है राइट साइड भी जा रहा है और उसका स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही, यानी कोर कंट्रोल अच्छा नहीं है। उस एथलीट को हम कोर कंट्रोल में ट्रेनिंग कराएंगे। तो दिस वे ये हम एक और वेरिएबल चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम कितना अच्छा मेंटेन किया है। अगर आप बाहर देखो इनके इक्विलिब्रियम के नीचे, फर्स्ट फेज के नीचे, तो दोनों में ऑरेंज जोन में है, यानी कि वेरी पुअर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कहीं पे भी उसने मेंटेन नहीं किया हुआ, ये सब सांप की तरह अड़बड़ गड़बड़ है। तो वी नीड टू जनरेट मोर स्टेबिलिटी इन द कोर। So these were all the machines that we were talking about in advanced assessment. Now let's proceed to live demo. For that, you have to wait for 2-3 minutes. We'll give you time for a rest because we have to go to the lab and show you. So just give us few minutes. नहीं हो रही है, कोई ट्रिक मूवमेंट तो नहीं कर रहे आप। आइडली जितनी भी मूवमेंट होनी चाहिए वो आपके फीट लेवल से रिसेप्शन होनी चाहिए। जो आपके एंकल जॉइंट में रिसेप्टर्स हैं दे शुड फायर मोर ऑन द प्लेटफॉर्म।
अगर आपके ट्रंक से मूवमेंट होगी, वहां से अगर कोई ट्रिक मूवमेंट हो रही है, तो ये सेंसर उसी टाइम पता लगा देंगे और हमें ये बता देंगे कि द मूवमेंट इज रॉन्ग, एंड देन वी कैन चेक द बैलेंस अगेन. नाउ शो द ग्राफ. सबसे पहला टेस्ट जो हमने रन किया है इज कॉल्ड एज ओपन एंड क्लोज्ड आई. इसके अंदर ही जस्ट हैव टू मेंटेन बैलेंस. First is open eyes. Let's see how he maintains balance in open eyes. I am audible to everyone, right, Dr. Rahul? आवाज आ रही है ना? Yes sir, आ रही है आवाज. ओके, जो आप ये पहला टेस्ट देख रहे हैं, स्क्रीन ब्लैंक हो गई है. इसमें एक टारगेट बीच में आ रहा है जिसको एथलीट को देखते रहना है और अपने आप को बैलेंस मेंटेन करके रखना है स्टेबल प्लेटफॉर्म पे. 30 सेकंड ये चलेगा, फिर 30 सेकंड हम इसकी आईज क्लोज करेंगे एथलीट की, एंड अगेन वी रीचेक कि क्लोज्ड आईज में कैसा रिस्पॉन्स आता है. तो फर्स्ट टेस्ट इज डन, सेकंड टेस्ट द क्लोज्ड आईज. So if you can see his eyes are closed. अगर इनने आंखें खोली तो ये एक ट्रिक मूवमेंट हो जाएगी. टेस्ट won't be valid. तो हमारे रिजल्ट आ गए हैं. अगर आप ये ग्राफ देखिए, कम लिटिल बिट फ्रंट. तो इस ग्राफ में अगर आप ये सर्कल देखेंगे, ये ग्रीन सर्कल जो बना है वो बना है हमारे क्लोज्ड आइज पे जब आंखें बंद थी. रेड सर्कल जो बना है वो बना है ओपन आइज पे. तो जाहिर सी बात है जब आंखें खुली होती हैं तब हमारा बैलेंस ज्यादा बेटर होता है. इसलिए आप अगर आप यहाँ देखोगे कि ये छोटा सर्कल बना है रेड वाला, ओपन आइज वाला, और इम्बैलेंस था जब इसने आंखें बंद करी. ये बड़ा सर्कल बना है. मगर एक चीज जो देखने वाली है इस ग्राफ में, ये सेंटर लाइन है. सेंटर लाइन से इतना पीछे हिज बैलेंस वाज ट्रांसफर. सो हिज COG वाज शिफ्टेड बिहाइंड टू हिज legs. His base of support is not falling into the proper position. So that makes him little unstable on the field. So that is why we need to train him for his stable platform, as on the stable platform for his static balance as well. और अगर हम रिजल्ट देखेंगे, ये रिजल्ट्स आए हैं स्क्रीन पे. रिजल्ट्स में बड़ी सारी वैल्यूज हैं जो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप सोचेंगे कि तंग कर दिया यहाँ पे वेबिनार लिख के. तो हम आपको तंग नहीं करेंगे. आप इसमें सिर्फ ये जान लीजिए कि जो ग्रीन एरिया है वो है एकदम बढ़िया रिजल्ट, जो येलो एरिया है वो है नॉर्मल रिजल्ट. तो ओपन आइज में द रिजल्ट्स वर प्रीटी गुड. वी हैव 2 green zones, whereas closed eyes में balance was okay, which was falling into normal region. Only one parameter was coming into a green zone. So हमारे पास we have lot of scope for improvement here. And second thing that we check, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये बेल्ट पता लगाती है कि कोई ट्रिक मूवमेंट तो नहीं है करी इंडिविजुअल ने. अगर आप यहाँ देखें ट्रंक स्टैंडर्ड डिविएशन जो यहाँ पे रिटर्न है और उसके आगे ये 2 वैल्यूज दी हुई हैं. सो फॉर इट टू बी वैलिड इट शुड फॉल बिटवीन 0.5 रेंज, वेयरएज इनका आ रहा है 0.50 से ऊपर 0.8 एंड 0.77. यानी कि इनने दोनों साइड में ट्रिक मूवमेंट करी हैं. ही हैज यूज्ड हिज ट्रंक. मगर ज्यादा यूज कब करी थी इनने? जब ये ओपन आइज में थे तब ज्यादा ट्रिक मूवमेंट करी थी. So this test is not valid. We have to redo it to get proper result. Then coming to a dynamic platform. अब अगर हम देखेंगे platform gonna move. So first we make the platform move, and then we ask the athlete to jump over it in a parallel zone. Then we check balance on a dynamic platform, how well he is doing. ये हमारा पहला टेस्ट है. ऐसे कम से कम इसमें 40-50 टेस्ट हैं, but I am giving you an indication of which
the tests which are really important for an athlete. इतने सारे टेस्ट हम नहीं कर पाएंगे इतने कम टाइम में, बट इस टेस्ट में आप देखेंगे अगर एथलीट अपना हाथ छोड़ दे, he has to maintain balance in this green zone. अगर ये ग्रीन जोन से बाहर आता है, दैट मीन्स डायनेमिक प्लेटफॉर्म पे उसका बैलेंस अच्छा नहीं है. और हमारे जो बैडमिंटन प्लेयर हैं दीक्षांत जी, वो ऑलरेडी येलो जोन में फॉल कर चुके हैं, विच इज इन अ नॉर्मल जोन. अगर जैसे ये ऑरेंज जोन में जाएगा तो हम कहेंगे इसका बैलेंस पुअर है. अब देखिए, ये जो हमारा एनालॉग स्केल है उस पे इसने एरो दिखाया है येलो जोन में, विच इज अगेन नॉर्मल, एंड वी नीड टू ट्रेन हिम इनटू द ग्रीन जोन. तो हम इसके डायनामिक प्लेटफॉर्म पे और एक्सरसाइज करवा सकते हैं जिससे इसका बैलेंस इंप्रूव हो. और हम अगर रिजल्ट्स देखेंगे तो रिजल्ट्स हैव कम नॉर्मल, whereas if you see the most stay sector, so his balance was more concise into this zone S5 and S4 which is behind him. हमने पहले टेस्ट में स्टेबल प्लेटफॉर्म पे भी ये देखा था, इसका बैलेंस जो फॉल कर रहा है वो स्टैटिक प्लेटफॉर्म में अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे फॉल करता है, एंड ही इज मोर कंफर्टेबल आल्सो इन द बैक पोजीशन, which should not be the case. That means he has lordosis and he has compromised center of gravity. We can train him better so that his balance is equalized in all the directions. So that is how we check for dynamic balance. And then we go for the training part. In training, we can ask him to play few games like as if he's flying. So take it like this. So let's see how well he flies the aeroplane. Can anybody tell what will happen if he is trying to fly on an unstable platform? Can you see he is playing a game? वो एरोप्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहा है और जो रेड टारगेट्स आ रहे हैं उस स्क्रीन पे, उनके पास जाके he has to touch them. अब जो रेड टारगेट्स आ रहे हैं he has to go and touch them. इससे क्या होगा? He'll try to use his proprioceptors on an unstable platform to bring about change in his muscle reaction to a stimuli. उससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और उसका बैलेंस बढ़ेगा, और ये चीज हमें हेल्प करेगी इनकी गेम में, बैडमिंटन में. सो दैट इज हाउ वी ट्रेन एन इंडिविजुअल इन द गेम. You can see his feet are moving on an unstable platform, and the platform is also not stable, it's moving in all directions. So that is how we train an individual on this machine. So इसमें assessment भी possible है और training भी possible है for an individual. Now you can come out of the machine. We take the sensor off. Now we are moving towards our next machine. So these are our 3 functional line machines. अगर आप ये पहली मशीन देखेंगे, ये the first machine that you see, the weights over here, these weights can be aligned in such a position कि उसके पोर्ट को मिमिक किया जाए. ये सारी वेरिएशन हम कर सकते हैं उनकी पोजीशन की, वेट की. इट्स अ 3-dimensional weight and we can adjust the hand like this, and while we are doing the movements as if you are a badminton player, then you are taking forehand shots with the weight and backhand shots with the weight, and the camera over there takes your photographs and video and tells us कि joint पे कितनी मूवमेंट हो रही है, कितनी रेंज आ रही है, कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में फॉल कर रहा है कि नहीं. All these parameters can be found. अभी हम आपको थोड़ा सा एक इंडिकेशन देंगे कि हाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम एंड इन सेंटर.
गाइस आपको दिख रहा है ये स्क्रीन? Are you in the center? Yes. Come over that machine now. आपको सबको स्क्रीन दिख रही है? Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. आपको हमारे बैडमिंटन एथलीट का फोटो भी दिख रहा होगा, वीडियो चल रहा है उसमें। Yes, sir. हमारा एथलीट आपको स्मार्ट भी लग रहा होगा। Yes. यस सर, ठीक है, गुड कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम। एनीवेज, अगर हम यहाँ देखें, आप ये लेफ्ट में जो बार देख रहे हैं, ये बता रहा है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड एथलीट का कहाँ पे फॉल कर रहा है। ये आपको दिख रहा है? Yes, sir. For him, the center of gravity is in the midline, but is shifting here and there. But he is able to maintain the center of gravity in midline while he is standing. Then आप सेकंड ग्राफ देखेंगे यहाँ पे, ये बताता है कि आपका ट्रंक मूवमेंट कितना चेंज हो रहा है। आप फ्लेक्शन हो रही है, साइड बेंडिंग हो रही है, या एक्सटेंशन हो रही है। दीक्षांत, कैन यू डू लिटिल बिट फॉरवर्ड बेंडिंग एंड शो द ग्राफ। ये आप अगर वैल्यू देखेंगे, ग्राफ इज गोइंग अप फॉरवर्ड बेंडिंग पे। दीक्षांत, गो बैक। अगर आप देखेंगे, जब एक्सटेंशन कर रहा है ट्रंक पे, तो ये पीछे जा रहा है। तो इससे हमें वैल्यूज मिल जाती है कि whether the person is doing trick movements from the trunk or whether he is able to maintain his base of support or not. अब आते हैं रेंज ऑफ मोशन। आप सबने मैनुअली टेस्ट किया होगा अपने लैब में रेंज ऑफ मोशन by using goniometer and all those techniques, right? Any other technique that you use for range of motion assessment? रेंज ऑफ मोशन के लिए आप क्या यूज करते हैं? Goniometer. sir. वेरी गुड। अब हमारे पास, हम आपको टेक्नोलॉजी दिखाते हैं कि विदाउट यूजिंग गोनियोमीटर इन एयर हाउ वी मेजर द रेंजेस। आप ये देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं ट्रंक पे, ये दिख रहा है हेड, ट्रंक, शोल्डर्स, एल्बोज, हिप, नी। अगर हमें देखना है कि हाउ मच एबडक्शन एडक्शन हैपनिंग ऑन द शोल्डर लेवल, so let's see. I clicked on the abduction adduction. Now Dikshant, go for the abduction. Raise the arm sideways. So can you see these values? When he raising the arm, एक जगह पे रुक जाओ दीक्षांत, just stay there. जब वो इस मूवमेंट पे है, you see the right side range of motion is 114 degrees, left side is 115 degrees. तो हमारी जो रेंजेस हैं वे अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हैं दोनों साइड, बट लेफ्ट साइड की रेंज बेटर है, राइट साइड की थोड़ी सी लिमिटेड है। तो हमारा गोनियोमीटर का काम टेक्नोलॉजी से हो गया। जब उसने रेस करे हवा में, द मशीन बाय यूजिंग कैमरा इट मेजर्स ऑल द रेंजेस। हिप पे, नी पे, एल्बो पे, वी कैन मेजर ऑल द रेंजेस एट एवरी लेवल ऑफ जॉइंट, मेन जॉइंट, एंड वी कैन डायग्नोज द प्रॉब्लम and we can enhance the performance by getting those sorted. So this is our second line of machine, which is called as functional assessment or functional line of assessment. इसमें सारे sport assess किए जा सकते हैं। We stop this machine over here. Now let's move on to our next machine. Now, you must have studied a topic called as gait analysis in your curriculum.
Now we'll show how the machine measures the gait and the ranges and everything while the person is walking or running. I'll show him and the platform. You can see on a screen he is moving, and the machine is trying to measure his all values in all these points. If you see these points, they are measuring all the values that the athlete has. So that the test was only for 30 seconds. Now we're gonna show you the results there only. So this is the result report that I've already shown you on a PPT. यहाँ पे इस एथलीट का हमें पता चला है. Can you see any red marks in the graph? Anybody can see any red mark? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कहाँ पे Round red mark? Knee, नी sir. पे. ये वाले रेड मार्क को कंफ्यूज मत करना. ये दिस इज नथिंग बट knee range of motion. रेंज ऑफ मोशन में कहीं पे रेड मार्क मिला है हमें? अगर मिला है तो कहाँ पे? area Yes, में. sir, right side. Right side. Right side. राइट साइड में. किस चीज पे राइट साइड में? नी पे. knee पे. Yes, sir. वेरी गुड. सो इसने ये बता दिया कि यहाँ पे नी पे राइट और लेफ्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. आइडली 5 डिग्री से ज्यादा अगर चेंज हो देन वी से इट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट एंड हमें सॉर्ट करना पड़ेगा. अगर हम सॉर्ट नहीं करेंगे तो एथलीट को इंजरी हो सकती है. यहाँ पे देखिए लेफ्ट नी में 56 डिग्री आए थे. लेफ्ट साइड में आया. सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया. दैट वी नीड टू सॉर्ट. एंड आप सॉर्ट कैसे करोगे? आप व्हाट डज दिस इंडिकेट कि फ्लेक्शन लॉस क्यों है लेफ्ट साइड में नी में? क्या रीजन हो सकता है एक एथलीट में? फ्लेक्शन लॉस कब होता है नी में? सर एक बार फिर से बताइए ना, क्या पूछ रहे हैं? आप मेरे को ये बताइए कि एक नी में, किसी एथलीट की नी में फ्लेक्शन लॉस कब होता है कि वो पूरा फ्लेक्स नहीं कर पा रहा एक साइड में? व्हाट कुड बी द रीजन? मसल कॉन्ट्रैक्चर. hamstring tightness. बेटा एथलीट में मसल कॉन्ट्रैक्चर तो नहीं होगा, नहीं तो वो एथलीट बन नहीं पाएगा. Hamstring overuse. hamstring tightness. हैमस्ट्रिंग टाइटनेस यू श्योर या कोई और टाइटनेस? quadriceps tightness. the quads का tightness होगा. ये किस लड़के ने बताया पहले? क्वाड. सर मैंने. क्या नाम है? सैफ खान. वेरी गुड. आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए. So quadriceps tightness, sir. हाँ, so it has to be quadriceps tightness on the left side. बट ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी इंडिकेटिव होती हैं. हमको कंफर्मेटरी क्लिनिकल टेस्टिंग करनी होती है टू कंफर्म कि वेदर और फाइंडिंग्स आर करेक्ट. ये हमें एक पता आइडिया दे देता है कि देयर कुड बी इश्यूज इन दीज एरिया. और कुछ एरिया अगर आप देखोगे हिप में कोई इशू नहीं है, ट्रंक में कोई इशू ये नहीं बता रहा है, मगर वी हैव टू चेक द वैल्यूज ऑल्सो. अगर आप लेफ्ट हिप पे देखो तो मिनिमम ही हैज गॉन टू -21 डिग्री विच इज एक्सटेंशन, whereas on the right side he has gone to minimum -23 degree. तो हमारी वैल्यू कौन सी ज्यादा है? राइट साइड में हिप की मूवमेंट ज्यादा थी कंपेयर टू लेफ्ट एक्सटेंशन की. whereas अगर हम फ्लेक्शन देखें हिप का तो लेफ्ट साइड में 28 है, राइट साइड में ज्यादा है. तो राइट साइड में हिप की फ्लेक्शन भी ज्यादा है. दैट मीन्स हमारे लेफ्ट साइड का जो मोशन है
वो हिप का वो थोड़ा सा लिमिटेड है. That means there could be some tightness in the hip joint and there could be mobility loss in the hip joint, जो कि हमें क्लिनिकली टेस्ट करनी पड़ेगी और सॉर्ट करनी पड़ेगी. This machine gives an indication कि ऐसा कुछ है. Then coming to load symmetry, जैसे कि हम गेट एनालिसिस में देखते हैं कि लोड सिमेट्री कहाँ पड़ रही है. ये बता रहा है कि राइट साइड में 0.3% मोर लोड है कंपेयर टू द लेफ्ट. Whereas it's not significant. अगर 0.3 और 2-3% का चेंज होता है तो दैट इज ओके, बिकॉज राइट साइड डोमिनेंट जिनकी होती है उसमें लोडिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है. So that is perfectly okay. And contact both the feet is 65 seconds. यानी कि लेफ्ट लेग जितना कॉन्टैक्ट टाइम ले रहा है उतना ही राइट लेग उतना ही कॉन्टैक्ट टाइम ले रहा है. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 2.5 सेंटीमीटर. ये मैटर करता है रनर्स में. अगर कोई रनर आता है हमारे पास और उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रनिंग में अराउंड 10 से ऊपर जाती है, तब हम सोचेंगे उसको दिस टू ट्रेन ऑन हिम ऑन दिस मशीन, ताकि हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की कम की जाए. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती क्या है? ये अप एंड डाउन मोशन व्हाइल द पर्सन इज रनिंग और वॉकिंग. अगर ये ज्यादा होगी अप एंड डाउन मूवमेंट, देन द रनर विल गेट टायर्ड वेरी इजीली एंड अर्ली, एंड उसका एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होगा, एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा. वो हम नहीं चाहते हैं. हम चाहते हैं कि वो लॉन्ग डिस्टेंस इजीली रन कर पाए, उसका स्टेमिना बेटर हो. उसके लिए हमें उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि ये लो रहे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. बट नॉर्मल पॉपुलेशन में इसका इतना रेलेवेंस नहीं है. देन कमिंग टू एवरेज स्टेप साइकिल टाइम, एक पूरा जो साइकिल क्रिएट हुआ स्टैंस एंड स्विंग साइकिल, गेट फेज, उसमें कितना टाइम लगा? 0.9 सेकेंड, 97 साइकिल्स पर सेकेंड. So which is falling into a yellow zone, which is normal zone. This shows कि step length कितनी थी. आपने step का cadence पढ़ा होगा, उसमें लेफ्ट में 73 सेंटीमीटर आगे गया है, राइट में 77 सेंटीमीटर गया है. Anybody can tell कि राइट का जो step length है वो ज्यादा क्यों है इन केस में? What could be the reason? सर बिकॉज नी फ्लेक्शन का रेंज रिस्ट्रिक्टेड है थोड़ा. वेरी गुड, वेरी गुड. अगर आप ऊपर चार्ट में देखोगे तो उसका हिप जॉइंट एक तो रिस्ट्रिक्टेड था थोड़ा सा लेफ्ट में, राइट जॉइंट ज्यादा मोबाइल है, तो ही वेंट फर्दर. और दूसरा रीजन कुड बी देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑन द राइट साइड कंपेयर टू द लेफ्ट. देन थर्ड रीजन कुड बी देयर कुड बी द पेल्विक डेविएशन ऑन द राइट साइड. अगर आपने इन फ्लेयर एंड आउट फ्लेयर, आपको पता है क्या होता है पेल्विस का? आपको पता है इन फ्लेयर आउट फ्लेयर क्या होता है? सुना है ये नाम? आप लोगों ने सुना है नाम कभी इन फ्लेयर आउट? इन फ्लेयर आउट फ्लेयर सुना है आप लोगों ने? हेलो सर, जो फॉरवर्ड एंड बेंडिंग और ये बैकवर्ड बेंडिंग होता है पेल्विक का, वो बेंडिंग नहीं होता. जो इलियम होती है, हमारी इलियम बोन होती है, अगर वो आगे शिफ्ट होती है फ्रंट में, तो दैट इज इन फ्लेयर. pelvic tilt. हाँ, pelvic tilt बेटा अलग हो गया. इन फ्लेयर इज लिटिल बिट आउटवर्ड रोटेशन एंड गोइंग फॉरवर्ड. ठीक. सो ये एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा कि उसकी वजह से भी स्टेप लेंथ डेविएशन आ जाती है, चेंज आ जाता है. देन दिस इज द होल चार्ट दैट वी डिस्कस विद एनएससी. ऐसे वेरी टेस्ट होते हैं. ये सिर्फ एक टेस्ट, जो मेन टेस्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ गेट का. देयर इज अ रनिंग एनालिसिस, देयर VO2 मैक्स असेसमेंट, 12 मिनट ट्रेडमिल टेस्टिंग, 12 मिनट ट्रेडमिल टेस्टिंग. देयर आर मेनी टेस्ट, बट दिस इज व्हाट बेसिकली व्हाट वी परफॉर्म ऑन एनएससी. देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट मशीन, over here we assess our trunk muscles. जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया पहले भी कि इस मशीन में ट्रंक मसल्स एसेस की जाती हैं कि उसका कंट्रोल कैसा है. द पर्सन इज सीटेड ऑन एन प्लेटफॉर्म विच इज मोबाइल एंड द प्लेटफॉर्म मूव्स एज वेल इन ऑल द डायरेक्शन. देन वी सेट दिस बेल्ट, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरोमीटर बेल्ट अगेन, टू चेक फॉर एनी ट्रिक मूवमेंट which is applied on the chest level,
कि कोई भी ट्रिक मूवमेंट हो तो हमें पता चल जाए। देन इसी पे करो, इसी को करो, बंद हो गया। Then we check his balance while he performs the motion. So once he is performing tilting motion on the pelvis as well as sideways bending and rotation, we come to know कि कितनी mobility है and trunk में और कितना वो है, control कितना है। So एक बार just focus on the pelvis. अगर आप यहाँ पेल्विस पे देखें तो जस्ट डू द टिल्टिंग मोशन। यस, सो आप में से बड़े सारे लोगों ने ये एज एन एक्सरसाइज यूज किया होगा, पेल्विक टिल्टिंग, टू गेट द आर्चेस सेटल्ड एज वेल एज टू गेन सम मोबिलिटी इन द पेल्विक रीजन। तो इस केस में हम व्हाइल ही इज परफॉर्मिंग दैट, वी कैन ट्रेन हिम ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे सारे वैल्यूज आ जाते हैं while he is doing that, whether he is able to perform that tilting movement back side or not, or front side or not. अगर नहीं तो we need to give prescribe some exercises to gain that, ताकि ये pelvic mobility sort हो। इसमें भी there are many tests that we can do. One is star test, जिसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि उसकी मोबिलिटी कितनी है पेल्विस में, हर डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है कि नहीं, जो मैंने रिजल्ट में दिखाया अभी आपको। सेकंड टेस्ट इज कॉल्ड एज प्रोप्रियोसेप्शन टेस्ट, और जिसके अंदर हम पेल्विस प्रोप्रियोसेप्शन चेक करते हैं और मूवमेंट चेक करते हैं कि कितना कंट्रोल है मूवमेंट में। अगर हम किस डायरेक्शन में उसे बोल रहे हैं जाने को, उस डायरेक्शन में जा पा रहा है विद कंट्रोल इन स्ट्रेट लाइन और नॉट। So all that can be checked. The machine is getting on, so it's getting little bit time. Till then, let's move on to our next machine. We'll show you the result abhi once it started. Yeah. So this is our postural bed. आप सब देख पा रहे हैं postural bed? Yes, sir. Everybody can- Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक फोर्स प्लेटफॉर्म है जिससे हम लिटाते हैं एथलीट को, और ये पता लगता है हमें कि द पर्सन हैज एनी डिफरेंसेस इन द रेंजेस, लेफ्ट और राइट में कोई इशू तो नहीं है। तो पहले सेंटर लाइन में करना होता है एक एथलीट को, हेड सेंटर में, बट सेंटर में आने चाहिए, पूरे बॉडी प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। देन हैंड्स आर सपोज्ड टू बी हेल्ड ऑन टू दिस पोजीशन ऑन द बार एंड रिलैक्स आर्म। अब क्या होगा, इफ यू सी यहाँ पे ये डिग्री जो हमने क्रिएट करी है दोनों प्लेटफॉर्म में, इट्स अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। ये 30 डिग्री इसलिए करेक्ट की जाती है रिसर्च से कि इस वैल्यू पे, इस डिग्री पे द पोस्टल मसल्स आर रिलैक्स्ड, द स्पाइनल मसल्स एंड लेग मसल्स गेट्स रिलैक्स्ड, एंड हम अच्छे से असेस कर सकते हैं कि स्पाइनल लोड किस साइड कितना ज्यादा पड़ रहा है। देन कमिंग टू द स्क्रीन, then we do a postal test that is done for approximately 2 minutes, but हम उतना टाइम नहीं लगाएंगे, अभी आपको शो करेंगे हम कि कैसे वैल्यूज आती हैं। अगर आप ये स्क्रीन देखो, इसमें ये रियल टाइम स्क्रीन है जिसमें अभी का लोड बता रहा है। टोटल लेफ्ट साइड लोड इज 49%, राइट साइड लोड इज 50%, एंड वैल्यूज अगर आप देखें तो ये बता रहा है कि ग्रीन जोन इज पेल्विक रीजन, yellow zone is lumbar region and scapular region is pink. तो ये दोनों वेरिएशन में दोनों साइड 12% है स्कैपुलर रीजन पे, दोनों राइट साइड में 13% है लंबर रीजन पे, लेफ्ट साइड में 12% है, यानी कि इधर कम है थोड़ी सी लोडिंग। पेल्विक रीजन में ऑलमोस्ट सेम है। तो थोड़ा सा इशू है इनके लंबर रीजन में, दैट वी कैन सॉर्ट, बट ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर 5% से ज्यादा डिफरेंस रहता है देन वी usually work on it. Yes.
Come Dikshant, you can come out. So this is how after 2 minutes this gives a complete picture कि लोडिंग ज्यादा लेफ्ट में थी कि राइट में थी, कितनी थी, जैसा अभी हमने डिस्कस भी किया था रिपोर्ट में कि वैल्यूज क्या क्या थी, उसके बेसिस पे वी कैन डू मैनिपुलेशन एंड करेक्ट द इश्यूज. Then now the machine has started. I'll just show you one. So in this machine, while we are doing testing, there are 2 tests, proprioceptive compare that I told you, and star test. हम अभी एक टेस्ट डिस्कस करेंगे which is proprioceptive compare. Okay, leave the bed. जैसे ही हमने टेस्ट पे क्लिक किया, the instability of the machine has increased. Now the platform that he is sitting on is more unstable. अब उस instability में we gonna train his trunk muscle. सबसे पहले इस एथलीट को क्या करना है, शो द स्क्रीन. ये बार जो है, जो आपको ये ब्लू कलर का आइकन दिख रहा है, ये बता रहा है कि इसकी पेल्विस कहाँ पे है. एंड व्हाइल ही इज मूविंग द पेल्विस, तो ये बार भी मूव करता है. अब हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है कि इस ब्लू लाइन पे ही हम चलते रहें, अपनी पेल्विस को इसी ब्लू लाइन पे मूव करवाएं. अब इससे होता क्या है, इससे बायोफीडबैक मिल रहा है हमारे एथलीट को कि वेदर ही इज गोइंग फॉर अ राइट रेंज और नॉट, एंड वेदर ही इज ट्रंक इज मोबाइल और नॉट. अगर वो कर पा रहा है सही से 3 रेप्स अच्छे से, रिजल्ट हमें बता देंगे कि उसका मूवमेंट अच्छा था कि नहीं और मोबाइल था कि नहीं. पहले हमने क्लॉकवाइज किया, सेकंड फेज इज एंटी क्लॉकवाइज. लेट्स सी वेदर ही इज एबल टू परफॉर्म द मूवमेंट इन द एंटी क्लॉकवाइज फेज. Show the pelvis while he is performing the motion. Yes. So this is how the test is performed. Then जो results आते हैं वो हमें बता देते हैं कि whether he performed well. So he performed almost normal and into the poor zone only. So he can be improved in the pelvic region. And result जो दिखते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं. अगर ये आप रिजल्ट देखोगे तो नॉर्मल जोन, विच इज अ येलो जोन दैट आई हैव टोल्ड यू, डोंट वरी अबाउट द नंबर्स अभी. देन लुकिंग एट दिस ग्राफ, ये बता रहा है कि मोस्ट स्टे सेक्टर कौन सा था. सबसे कंफर्टेबल ये हमारा एथलीट था आगे की जोन में एंड मिडल जोन में. ऑल दीज जोन्स, अदर जोन्स आर लैकिंग बिहाइंड. So we need to work on his mobility in the backward direction. So he has anterior pelvic tilt and increased lumbar lordosis, which is restricting the motion at the pelvic region. So these are all the machines that you have seen today that we have in our center that is used as an advanced form of assessment in athletes. Any questions, guys? Yeah, anyone can ask any related to this? Hello. Yeah. Yes, sir. In the last machine where we were checking the range of motion automatically. Yes. Hello. Yes. Please. Yes. Tell. Yes, sir. In that the camera is in front. So how it is detecting the range of motion of knee flexion and flexion of the shoulders? Yes. So if you see the platform of the treadmill, so it has those bars which has another cameras in it. Yes, sir. One is 3, and the camera is 3D camera. And Yes, once it has those points on it, which gives an indication of all the joints present, and other cameras are placed on those bars that we have. Yes, sir. So ideally, to set up a assessment, gait assessment lab, we need to have 3 cameras minimum in different directions. So that is how it is more of a software calibrated assessment tool. Software pata lagata hai ranges mainly instead of using main cameras. Question अच्छा था. Anyone else? Anybody else? Yes. So guys, this is a
Yeah, Rahul. I guess they have got much of the knowledge of athlete assessment और नॉर्मल लेक्चर से तो काफी अच्छा था। नॉर्मल लेक्चर में अभी लोग सोए हुए थे, लेकिन इसमें लाइव डेमो और इंटरैक्टिव सेशन सबने अच्छे से इंटरेस्ट लेके देखा और समझा। राइट, मैंने सोचा नहीं था कि कुछ लोग क्वेश्चन भी पूछेंगे, बट पूछा एंड कई लड़कियों ने बीच में काफी जवाब भी दिए अच्छे अच्छे, तो दैट्स गुड, दे आर टेकिंग इंटरेस्ट। एंड वो आपके बैडमिंटन प्लेयर, उनका भी थैंक यू जो हम लोग के साथ इतना टाइम दिए। हाँ, he is very happy to be a model during these pandemic times. Thanks to the university. कोशिश करेंगे नेक्स्ट। यस यस, Thanks so much for the Vinoba. एक्चुअली डायरेक्टर सर भी ज्वाइन होते, पर वो डायरेक्टर सर को यहाँ पे अभी कुछ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कोविड में पाया गया है, तो इसलिए वो क्वारंटाइन है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए। तो जब भी नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि फिर से एक अच्छा सेशन हो तुम्हारे साथ। स्टूडेंट काफी इंटरेस्टेड है, मेरे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सब ही अप्रिशिएट कर रहे और थैंकफुल है कि तुमने इतने अच्छे से डेमो दिया और इतना अच्छा इंटरैक्टिव सेशन था। तो मे बी तुम्हारे कांटेक्ट नंबर कुछ लोग मांगेंगे तो फॉरवर्ड कर देंगे उनको अपना व्यूज जरूर दिखाना। श्योर बट थोड़ा सा शायद थोड़ा लंबा खिंच गया, तो सारे थोड़े से पक गए होंगे थोड़े स्टूडेंट्स, बट दैट्स ऑल राइट। You guys, this sports field is very booming field right nowadays, and there's a lot of money and there's a lot of fame in the sports field. You should all try for MPT sports and get into this field. This is amazing field for your future. As everyone can see that he's in the good center and he's earning good, as I know. Yeah. Okay, anyway, thanks Vinoba University a lot for giving me an opportunity to conduct an webinar for the students. Thank you. Thank you for your time, Sumit.